Assalamu alaikum children, how are you all? Today I am going to explain you how to use a or an. Now, first I will tell you about vowels, then consonant. Now, there are 26 letters in English alphabet. Out of these, 5 of them are called vowels. I hope I have explained this before also. I am revising this again. That is A, E, I, O, U. And the rest of the letters are called consonants. So, the thing is that when we use A and when you use an. Now here is a chart. Use A or an, right? Now see, if the word, this is apple, if the word begins with vowel, you have to add an before the word. I am repeating this again. If the word begins with vowel, that is, if the word begins with A, if the word begins with E, if the word begins with I, if the word begins with O or U, then you have to add what? An. Right? And when the word begins with consonant, now here is a consonant, here is also a consonant. So before consonant, children, you have to add A before the word. Right? Now suppose this is egg, E-double-G, egg. Egg begins with vowel or consonant? Yes, good. Egg begins with vowel. So before vowel you write and before the word. Thank you. Assalamu alaikum. Now here is our more for us. Let's do some new exercise from this book, children. Open your book. Here is page number 24. Which page is this? 24. Now children, here you have to write date and day. Read and match. Now I have already explained you vowel and consonant before. Now here is a picture of apple and here is written an apple or a apple. Obviously the correct one is an. So what you have to do, you have to read this and then match with the correct picture. So here is a scale, hold your scale and then match it. Right? Now, here is another picture. What is this? It's a tree. Now, an tree and a tree. I told you children, before consonant, we should not use an. We should only use an before vowel, right? Now, so the correct one is a tree. So, match it here with the scale. Like this. In the same way you will do rest of the pictures by reading the correct one and then match with the related picture. Okay, after doing the I have done 2 and 2 you have to do, right? After doing this, then color these pictures. Okay, thank you. Assalamu alaikum. How are you all? Now we will do more exercises from English, more for us. Open your book with me. Here is page number 25. What is this? Read the instruction. First write date and day. Read and write. Now here is what you have to do here. First I am going to revise vowel and consonants before starting this page. Now I have already explained you when the word begins with at first I am going to explain you what is vowel. Now there are 26 letters in English alphabets. Out of these, 5 of them are called vowel, that is A, E, I, O, U, and the rest of the letters are called consonants, that is B, D, F, H and so on. Now what you have to do in this page, before vowel you have to add an, and before consonant you have to add
A before the word. Let's start. Now this is an egg. So egg, the word egg begins with vowel. So you will add an here. An egg. Now what is this? Consonant or vowel? No, this is consonant. Before consonant you will add a tree. Now B-O-Y, boy. Boy start with B. B is consonant. Before consonant you have to add A. Here is another consonant H. H-O-R-S-E, horse. You have to add A. Now in the same way you have to solve rest of the page with the help of your mummy, and after doing this page color all the pictures. Thank you. Assalamu alaikum. Today we are going to do More for Us Mathematics Book 3. Now open the book with me. So today we have to do page number 37. First we have to write date and day. Now read the caption with me. Write teen words from 13 to 15. Now first we have to write in number 13 is equals to sign. Now read the spelling with me. Thirteen. 13. Thirteen. So today we are going to do teen words. So these are called teen words. What these are called? Teen words. Again, Thirteen. 13. And you have to do the rest of the page like this with the help of your mummy. Thank you. Read the caption with me. Write teen words from 16 to 19. Now, which number is this? 16. Read the spelling. S-I-X, 6, T-E-E-N, teen. Now, you can see teen at the end of every number. So, they are all teen numbers. 16, 17, 18, 19. Let's start writing. Write the numbers touching the line. 1 and 6. 16. Sign of equals to. Write the letters touching the line. S, I, X, 6, T, E, N, 16. When you are writing the letters, write small letters touching the line. Again, S, I, X, 6, T, E, N, 16. Again you have to write 16 touching the line. Put the sign of equals to touching the line. S, I, X, 6, T, E, N, 16. I have written all 16 for you. You have to write 17, 18 and 19 just like me. Thank you. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी चमेली की किताब है, इसका सफ़ा नंबर 22। उन्वान हमें यहाँ दिया गया है मिलाइए। हमें यहाँ क्या करना है? मिलाना है। सबसे पहले आपने तारीख लिखनी है, उसके बाद आपने दिन लिखना है।
आपको यहाँ हर्फ दिया गया है बे जमा अलिफ, बे अलिफ बा। फिर आपको यहाँ दिया गया है जीम जमा अलिफ। तो हम यहाँ जीम की आधी शक्ल बनाएंगे और इसके साथ अलिफ को मिला देंगे। क्या बना ये? जीम अलिफ जा। फिर आपको यहाँ दिया गया है दाल जमा अलिफ। दाल के साथ हम अलिफ को नहीं मिला सकते, दाल अलिफ दा। फिर यहाँ दिया गया है आपको सीन और अलिफ, सीन की आधी शक्ल और साथ अलिफ, सीन अलिफ। बच्चों अगला हर्फ आपको यहाँ दिया गया है काफ, ठीक है। अब काफ और अलिफ को हमने जमा करना है, तो काफ और अलिफ को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ से हम शुरू करेंगे और एक इसकी सीधी लिखी काफ अलिफ का। फिर आपको यहाँ दिया गया है लाम। क्या दिया गया है आपको? अब हम यहाँ लिखेंगे लाम सही और लाम अलिफ ला। फिर आपको यहाँ दिया गया है आखिरी हर्फ नून जमा अलिफ, नून अलिफ ना। इस तरह हमने इसके साथ अलिफ को मिलाना है। अलग कीजिए, हमारे यहाँ उन्वान है अलग कीजिए। अब आपको यहाँ पे अलिफ पा दिया गया है, इसे हम अलग कैसे करेंगे? पहला हर्फ यहाँ क्या आ रहा है? पहला हमें हर्फ यहाँ क्या दिया गया है? इन्होंने पे के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अलिफ। तो इन्होंने पहले पे लिखा और जमा अलिफ। अब यहाँ क्या है? ये क्या है? खे, फिर अलिफ। अब हम यहाँ लिखेंगे खे और हम यहाँ लिखेंगे अलिफ, क्योंकि हमें इसे अलग करना है, यहाँ हमें मिलाना था। रे अलिफ रा, ये सेम ऐसा ही आएगा। फिर आपको यहाँ दिया गया है स्वाद और अलिफ। स्वाद को हम यहाँ लिखेंगे और अलिफ को हम यहाँ लिखेंगे। फिर आपको यहाँ दिया गया है गाफ अलिफ गा। ये रहा गाफ, गाफ को हमने यहाँ लिखा और अलिफ हमने यहाँ लिखा। समझ आ रहा है बच्चों? फिर आपको यहाँ दिया गया है मीम अलिफ माँ। हमने यहाँ मीम लिखा अलग से, क्योंकि हमें इसे अलग करना है, और अलिफ लिखा मीम अलिफ माँ। फिर हमें यहाँ दिया गया है हे अलिफ हा। तो हम इसे हे लिखेंगे और हम यहाँ लिखेंगे अलिफ। उम्मीद है आप आज का काम आप लोगों को समझ आया होगा। हमें बस मिलाना है, ठीक है, और अलग करना है। छोटी छोटी हर्फ आपको यहाँ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे बे अलिफ बा, पे अलिफ पा। ठीक है बच्चों, अगर कुछ समझ नहीं आएगा आपको तो आप इसमें अपनी मामा की हेल्प ले सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चंबेली की किताब है आपकी और उन्वान है हमारा कछुआ और मुर्गाबियाँ। ये एक कहानी है, तस्वीर की मदद से मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक कछुआ तालाब के किनारे उदास बैठा कुछ सोच रहा था। ऊपर से उड़ती मुर्गाबियों ने उसे देखा तो नीचे उतर आईं। क्या हुआ कछुए, क्यों उदास हो? कछुए ने कहा, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता, चलता भी इतना आहिस्ता हूँ, कोई और जगह मैंने देखी ही नहीं। मुर्गाबियों को इस पर बहुत तरस आया। उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि कछुए को सैर कराई जाए। वो मिलजुल कर कहीं से एक डंडा लाईं। कछुए से कहा, इसको अपने मुंह से पकड़ लो, हम ये लेकर उड़ेंगे। रास्ते में कुछ भी देखो मगर बोलना नहीं, वरना गिर जाओगे। कछुए मियाँ बहुत खुश हुए। उन्होंने डंडा मुंह से पकड़ लिया। मुर्गाबियों ने डंडा पकड़कर उड़ना शुरू किया। कछुए मियाँ बहुत खुशी से उड़ते जा रहे थे। नीचे नई जगह, ऊपर बादल, बहुत मज़ा आ रहा था। एक जगह कुछ बच्चे खड़े थे। इन्होंने कछुए को इस तरह देखा तो मजाक उड़ाने लगे।
वो देखो, ओहो, कछुए भी अभी उड़ रहे हैं। कछुए को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में कुछ जवाब देने के लिए मुंह जैसे ही खोलता है, और ये क्या, वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा, लेकिन अपने सख्त खौल की वजह से बच गया, मगर वो सीधा हो ही नहीं सकता था। मुर्गाबियाँ तेजी से नीचे आईं, उसे सीधा किया और ये कहते हुए उड़ गईं, गुस्से में अकल खो जाती है, कभी गुस्से में आकर बेवकूफ़ी ना करो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्से में भी बड़ों से बात करना कि किस तरह बात करनी है, और कोई भी गुस्से में गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने भी गुस्से में हों। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मुझे इल्म ज़्यादा दे। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम याद करेंगे अरबी गिनती। तो पहले तावुज़ व तस्मिया पढ़ते हैं। पढ़िए, तावुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़हा नंबर 31 और 32। हिस्सा शशम, अरबी गिनती। पढ़िए, वाहिद, एक किताब। इस्नान, दो सेब। सलासा, तीन सितारे। अरबा, चार गेंदें। खमसा, पाँच कलम। सित्ता, छः घंटियाँ। सबआ, सात चांद। समानिया, आठ तीर के निशान। तिस्आ, नौ चकोर डब्बे। अशरा, 10 रंगों के ब्रश। चलिए अब हम दोबारा दोहराते हैं। वाहिद, एक। इस्नान, 2। सलासा, 3। अरबा, 4। खमसा, 5। सित्ता, 6। सबआ, 7। समानिया, 8। तिस्आ, 9। अशरा, 10। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम अरबी गिनती के एक एक्टिविटी करेंगे और इसमें देखें एक खुशगवार मंज़र है जिसमें जानवर भी हैं, फ्रूट भी है, तितलियाँ भी हैं और पेड़ पौधे भी हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर है एक कछुआ जो कि पत्ते खाता है, और वहाँ एक बंदर है जो केले खाता है, और एक यहाँ मेंढक है जो कि कीड़े मकोड़े और तितलियाँ वगैरह भी खाता है। तो इस गार्डन में देखें बहुत सारी तितलियाँ हैं। तो मेंढक जो है भूख लगी हुई है, इसको खाना है तितलियाँ। अब हम इसको खाने के लिए कितनी तितलियाँ दें? चले एक गेम करते हैं। हम इसको चेक करते हैं। इसमें से एक पर्ची उठाएंगे और जो भी नंबर इसमें होगा हम इतनी ही तितलियाँ इसको खाने के लिए देंगे। ओ, इस्नानुन यानी 2 तितलियाँ देनी हैं। कौन सी दें? एक ब्लू एंड ग्रीन।
अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं। वाहिद, वाहिद यानी एक तितली देनी है इसको खाने में। अब देते हैं हम लाल तितली। अब दोबारा करते हैं। ओ, फिर वाहिद। अब इसको हम देते हैं पीली कलर। जी बच्चों, इस तरह हमने गिनती भी सीख ली और मिंटन को खाने के लिए तितलियाँ भी मिल गई। ठीक है बच्चों, अब आप इसको दोहराइए, याद कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।